जो कि सहायक ग्रंथपाल एग्रीकल्चर कॉलेज इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से हैं, रायगढ़। मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो अपने विषय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। सुनील कुमार गौतम सर, प्लीज वेलकम। हेलो। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू सर। स्क्रीन इनका क्लोज करिए। जी सर। हेलो। जी सर, सुनाई दे रही सर, प्लीज कंटिन्यू। Okay, respected all participants, good evening to all of you. Myself Sunil Kumar Gautam, and I am working as the assistant librarian at College of Agriculture and Research Institution Raigad, which is associated with Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. First of all, I would like to thank and congratulate Mr. Salik Ram, President Jan Seva Bharati Pustakalayam Sangh, and his team for organizing such a nice webinar in lockdown period. In lockdown, where whole world is almost closed, we all know very well. Teachers are at home, students are at home, and everybody are at home. So it is a very crucial period, and in this crucial period, it is a very nice initiative taken by Mr. Salik Ram. Okay, now I am heartily thankful to my mentor, my guru, Professor Bhaskar Mukherjee sir, for his blessing. And I also heartily thankful to Dr. Brijesh Tiwari sir, Head of Department, Library and Information Science, Guru Ghanshyam Vishwavidyalaya, Bilaspur. I am heartily thankful to Dr. Madhav Pandey sir, Satpathy sir, and all dignitaries. Okay, now I am start my presentation, and my presentation topic is technological impact on library products and services with a special reference to post-lockdown period. Here, hello. Now, advances in ICT and change virtually. Hello. Advances in ICT have changed virtually every aspect of human life. In lockdown period, these changes have dramatically impacted how we can communicate, deliver information, manage information, use time, and complete simple and complex daily tasks. During this period, IT forced us to use of multimodal learning environment and multimodal communication channels and maximum use of digital products. Here, now we say that we can say that ICT changed the lifestyle of human beings during lockdown period, and its impact is people change how to communicate, deliver information, manage, use time, and ICT forced us to shift from traditional to multimodal learning environment. Means पहले जो हमारे पास कंटेंट था उसको अब हमें मैनेज करना होगा और ऐसे मैनेज करना होगा कि यूजर तक वो पहुंच सके। ये लॉकडाउन के बाद का जो चैलेंजेस हमारे लिए पोस्ट लॉकडाउन चैलेंजेस जो है वो ये है कि हमें अब मल्टी मॉडल लर्निंग एनवायरनमेंट पे काम करना होगा, और वो मल्टी मॉडल लर्निंग एनवायरनमेंट टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो लर्निंग मटेरियल भी हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। Now, technological impact on library services. See, the technological impact of library services. Librarians have to learn new knowledge and skills in order to meet user needs for new information services using ICT and e-resources. Now, अब हम लाइब्रेरियंस को ये समझना होगा कि यूजर्स की नीड क्या है, उनकी नीड किस इंफॉर्मेशन सर्विसेज की है, इस ICT एरा एंड e-resources के रूप में। Now the second one is to capture, store, change the format of information and distribution of information. अब हमें हर इंफॉर्मेशन को जो भी रिसोर्सेस हैं उनको कैप्चर करना होगा, प्रॉपर्ली स्टोर करना होगा, एंड एज पर यूजर नीड उस इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा।
Now the third one is to introduce and allow to use new services by providing faster access to the resources. हमें अब अपने जितनी भी सर्विसेज हैं उनको फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करना होगा यूजर्स को, लाइक रिमोट लॉगिन एक्सेस। हम अब उसको लैन के थ्रू नहीं रख सकते हैं, हम उसको लैन एरिया में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज द नीड इज मैन टू इनकरेज नेटवर्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग एट लैन वैन मैन लेवल। पहले हम क्या करते थे, बिफोर लॉकडाउन पीरियड हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी सर्विसेज को हम एक लोकल एरिया नेटवर्क तक सीमित रखते थे, या कह सकते हैं एक वाइड एरिया नेटवर्क तक। बट अब चीजें एकदम बदल गई हैं ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना। अब हमें उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे डालना होगा। टू रिट्राइव डिसेमिनेशन द इंफॉर्मेशन इन यूजर डिफाइंड फॉर्मेट। पहले हम क्या होता था कि हमारी सिस्टम में, हमारी लाइब्रेरी सिस्टम में, हमारे जितने रिसोर्स सेंटर है, हमारे जितने इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, हम डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को अपने फॉर्मेट में रखते थे। बट नाउ द टाइम इज चेंज, हम अब उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव एंड डिसेमिनेट करने के लिए एज पर यूजर नीड, एज पर यूजर डिफाइंड फॉर्मेट में हमें रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज डिजिटल लर्निंग प्रोडक्ट may be free or one time investment rather than print media। हमारे जितने लर्निंग प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल लर्निंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें फ्री करना होगा, उनको हमें परचेज बेस्ड सिस्टम से हटाना पड़ेगा। ये या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं रेदर देन प्रिंट मीडिया, बिकॉज प्रिंट मीडिया इज वेरी कॉस्टली, प्रिंट मीडिया इज वेरी एफिशिएंटली। तो हमें डिजिटल लर्निंग प्रोडक्ट्स को वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज करना होगा कि एक बार हम उसका फॉर्मेट बनाते, एक बार हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक उसका हम पोर्टल बना दें जहां पे यूजर उसको फ्रीली एक्सेस कर सके। डिजिटल लर्निंग प्रोडक्ट कैन बी सेंट इन मल्टीपल कॉपीज simultaneously over information network in fraction of minutes or even of a second। हम जो डिजिटल लर्निंग प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसके मल्टीपल कॉपी जो है एक साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे हम मिनट या सेकंड में भेज सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईसीटी टूल्स फॉर ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज। जैसा कि हमसे पहले चौधरी सर ने बताया कि बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बहुत सारे ओपन एक्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ हियर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज। फर्स्ट वन इज ई लर्निंग। E-learning is an umbrella term that describes learning activities done at computer, usually connected to network, giving the opportunity to learn almost anytime, anywhere. Through the e-learning, we can study, we can share, we can use e-resources anytime, anywhere. Basically, it is a very important in lockdown period because it eliminates distance between user and सर्विस प्रोवाइडर। ई लर्निंग के थ्रू यूजर और सर्विस प्रोवाइडर के जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों को जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग COVID-19 and lockdown period, e-learning is gaining lot of popularity in our country due to unavailability of content on digital platform during. Next one is VLE. VLE is virtual learning environment. Now, after the lockdown period, we can use or we can provide services through only and only virtual learning environment, because virtual learning environment provide a platform to organize online subject and course related material for students, faculties, and other registered members. Virtual learning environment allow content management, curriculum mapping, planning, assets, learner engagement, communication, and collaboration. It uses internet and as well as intranet to get and provide access to learning material and to interact with the faculties learning. Means virtual learning environment पे क्या है कि virtual learning environment के थ्रू हम किसी भी ऑनलाइन सब्जेक्ट और कोर्स के रिलेटेड मटेरियल को एक जगह हम कंपाइल कर सकते हैं और उसको फैकल्टी, स्टूडेंट और अदर मेंबर को जो कि रजिस्टर्ड है हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में हम इंटरनेट और इंटरनेट बोथ कैन यूज, उसको यूज करके लर्निंग मटेरियल हम तैयार करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिजिटल स्कॉलरशिप। व्हाट इज डिजिटल स्कॉलरशिप? Digital scholarship is nothing but basically it is a conversation between gurus and शिष्य। पुरानी परंपराओं में हम क्या देखते थे कि गुरु के पास शिष्य जाता था, शिष्य ज्ञान लेता था और गुरु उसको ज्ञान देता था और इस माध्यम से पठन पाठन का काम चलता है। वो टाइम अब चेंज हो गया है। अब हम उसको डिजिटल स्कॉलरशिप के तौर पे देखेंगे। मीन्स कि टीचर भी ऑनलाइन रहेगा, स्टूडेंट भी ऑनलाइन रहेगा एंड टीचर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एंड स्टूडेंट उसको गेन करेगा। दैट इज कॉल्ड डिजिटल स्कॉलरशिप। मीन्स कि थ्रू ऑनलाइन चैनल वी कैन शेयर आवर नॉलेज टू स्टूडेंट्स, टू members. Next one is scholarly communication channel. Scholarly communication channel is very important aspect during this period because many of the scientists, many of the professors, many of the association use Facebook, YouTube, Twitter, and you can say that webinar, online conferences, online meeting portal like Zoom, Skype, Google Duo, Cisco Web, Go Meeting app. कहने का मतलब ये है कि जो आईसीटी टूल्स है हमारे, जिसको कि हम ई लर्निंग के थ्रू देखते हैं, वीएलई के थ्रू देखते हैं, डिजिटल स्कॉलरशिप, अब हम क्या है कि यूट्यूब को यूज कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोग बहुत सारे वेबिनार अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड कर रहे होंगे। यूट्यूब पे अब लाइव सेशन चल रहा है, आप लाइव किसी को सुन सकते हो। आप जो भी आपकी क्वेरी हो, हाँ, you can query with the expert on live session chat in YouTube platform. You can listen more videos on Facebook, Instagram and another platform. वेबिनार हो गया है, सेमिनार का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब वेबिनार हो गया बिकॉज लॉकडाउन ने हम सबको मजबूर कर दिया है कि हम अब सेमिनार की जगह वेबिनार करेंगे, क्योंकि हम मिल नहीं सकते हैं फिजिकली, एक दूसरे से फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। तो many of the association, many of the institute organized a webinar very well and very efficiently. Next one is online conferences. सभी लोग देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग पोर्टल्स भी आ गए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, लाइक जूम हो गया, स्काइप हो गया। जूम और स्काइप को तो गवर्नमेंट ने वैसे भी हम सबसे अपील कर रखा है कि डेटा सुरक्षित नहीं है, तो हम कम से कम जूम और स्काइप को यूज करें। बट ये हमारी मजबूरी है कि बहुत सारे जो वेबिनार हैं वो जूम पे ही हो रहे हैं, स्काइप पे ही हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज गूगल डुओ है, सिस्को वेब है, गोटो मीटिंग ऐप, जिसके माध्यम से ये वेबिनार हो रहा है संघ के द्वारा। नेक्स्ट वन इज डिजिटल लर्निंग पोर्टल। डिजिटल लर्निंग पोर्टल्स में फर्स्ट वन इज स्वयं, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड वाइड में हम कोई भी एजुकेशन सिस्टम ले सकते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पाठशाला है, गंगा है, ज्ञान कोश है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी विच इज डन बाय आईआईटी खड़गपुर। इट इज द लार्जेस्ट डिजिटल पोर्टल इन इंडिया। तो ये सारे डिजिटल लर्निंग पोर्टल सब आ गए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। थ्रू हम ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे सकते हैं, हम यूजर्स को एक्सेस करा सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम इज द कंटेंट मैनेजमेंट। लाइब्रेरी सर्विसेज इन डिजिटल एनवायरनमेंट। जो सर्विसेज हम फिजिकली लाइब्रेरी में देते थे, अब हम उस सर्विस को हम ई जर्नल्स के रूप में, ई पब्लिशिंग सेंटर के रूप में, ई बुक के रूप में, ई रिसोर्स डेटाबेस के रूप में हमें अब ओपन एक्सेस को प्रमोट करना है। बिकॉज पिछले काफी टाइम से बहुत सारे लाइब्रेरी सिस्टम जो है क्लोज एक्सेस फॉलो करते आई हैं, बट अब हमें ओपन एक्सेस को प्रमोट करना होगा। हम जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको उनके ऊपर से जो इसको हटानी पड़ेगी ताकि लोग उसको ओपन एक्सेस सर्च कर सकें फ्रीली। इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को हमें बढ़ावा देना होगा।
Web Apex is very important because some of the library use only OPEX, but through the Web Apex we can share our resources to the whole India. Next one is Library Consortia. Library Consortia is very useful in this case because many of the library collaborate with each other and provide their resources to the users. Now, challenges. Challenges for librarians. Many challenges. Hello. Challenges for librarians. Main challenge is related to content management. हम लाइव रिसोर्स की बात कर ले या जर्नल्स की बात कर ले। हेलो हेलो प्लीज अनम्यूट माइक। हेलो मोनिका करके लड़की है, मोनिका करके लड़की। प्लीज अनम्यूट माइक प्लीज। डिस्टर्बेंस जी सर, देख रहे हैं सर। देयर इज वेरी डिस्टर्बेंस। मोनिका का देखना, मूड किया जा रहा है सर। हो गया हेलो सर, सबको मूड किया जा रहा है। आप फिर से अपना माइक जो है, हाँ सुनील कुमार गौतम सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। Now the next slide is challenges sir, for please librarians. continue sir. Okay, now the next slide is challenges for librarians. The main challenge is content management. First one is content management. Dear participants, सबसे जो जरूरी चीजें हैं डियर लाइब्रेरियंस एंड प्रोफेशनल्स, सबसे जो जरूरी चीजें होती हैं इस पीरियड में हमें कंटेंट मैनेजमेंट। सब लोग चाहे आप ई रिसोर्सेज की बात कर ले, चाहे ई जर्नल्स की बात कर ले, या डेटाबेसेस की बात कर ले, या ई बुक्स की बात कर ले, द मेन प्रॉब्लम इज कंटेंट मैनेजमेंट फॉर ए लाइब्रेरियन। बिकॉज सबसे जरूरी चीज है कि कंटेंट क्या होगा या कंटेंट कैसा होगा, उस कंटेंट को हम रखेंगे कहाँ। कंटेंट क्या होगा मीन्स वो बुक फॉर्म में होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, हम कैसा होगा वो, उसके ऑडियो होगा कि टेक्स्ट होगा या वीडियो होगा, किस टाइप का होगा। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक लाइब्रेरियन के लिए आफ्टर लॉकडाउन पीरियड वो होगा कंटेंट मैनेजमेंट का, कि कंटेंट क्या होगा, कैसा होगा और कहाँ रखा जाएगा। एंड द नेक्स्ट चैलेंज इज फॉर लाइब्रेरियन इज टू क्रिएट मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन चैनल। मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन चैनल मीन्स कि किस माध्यम से आप यूजर तक पहुंचेंगे। आप वीडियो के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, आप ऑडियो के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। किस माध्यम से पहुंचेंगे, आप वेब ओपन के माध्यम से पहुंचेंगे। तो मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन चैनल इज द मेन सेकेंड चैलेंज फॉर लाइब्रेरियन। नाउ द थर्ड वन इज टू डेवलप मल्टी मॉडल लर्निंग एनवायरमेंट। आप मल्टी मॉडल लर्निंग एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। We all librarians and professionals after lockdown period we can use multimodal learning environment. Means we can organize text, video, audio learning material, and this is called multimodal learning environment. Fourth one is to develop e-publishing platform. अब हमें क्या आता है कि जो डॉक्यूमेंट, जो बुक्स हम रखते थे लाइब्रेरी सिस्टम में, जो हम स्टैक एरिया, टेक्स्ट बुक एरिया में रखते थे, हम उसको अब ई पब्लिशिंग फॉर्म में रखेंगे, उसको ई पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ताकि यूजर उसको तरीके से और तेजी से एक्सेस कर सके। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट ओपन एक्सेस. Open access is a big challenge for library professionals because in open access many challenges in front of librarians feel, क्योंकि ओपन एक्सेस के थ्रू हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बस उसके साथ जो कॉपीराइट एंड कॉपी लेफ्ट का हमारे कुछ स्पीकर्स बात करते हैं उसके साथ प्रॉब्लम है। हम सारे डॉक्यूमेंट को हम नहीं एक्सेस करा सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रेयर कलेक्शन होते हैं, कुछ गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं, हम उनको ओपन एक्सेस पे नहीं रख सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट हो गए उसमें, तो उसको हम ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते हैं। लास्ट वन इज टू प्रमोट वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसके कोर्स से रिलेटेड जितने भी मटेरियल है हम उसको ऑनलाइन क्रिएट करेंगे एंड उसको यूजर्स तक पहुंचाएंगे। उससे बहुत सारे फायदे भी है वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट के, कि उसको हम तेजी से एक्सेस करा सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट ऑफर लर्निंग एज पर द कन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस। इट प्रोवाइड फास्टर एंड चीपर डिलीवरी ऑफ मटेरियल। वर्चुअल लर्निंग मैनेजमेंट के थ्रू हम बहुत सारी जो मटेरियल्स हैं उसको प्रिंट फॉर्म के रेदर देन हम बहुत चीपर उसमें फॉर्म में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज conclusion slide. And in my opinion, in my view, the conclusion of this topic is libraries and librarians of 21st century can play a vital role in this crisis, because you all know this is a big crisis. So they can help in providing right information to right user at right time through the online portal. It is the first time in history that users are getting opportunity to enhance their wealth through the creation and use of knowledge. And the libraries and librarians are taking a central role in this lockdown period and play a significant role to create big opportunity in this crisis time. So ये जो पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड है उसमें हम लाइब्रेरियंस को बहुत बड़ी चैलेंज जो है फेस करना पड़ेगा, और हमें इंफॉर्मेशन को यूजर तक एक्सेस कराना पड़ेगा। सारी चीजें चेंज हो चुकी होंगी, कंटेंट का फॉर्म चेंज हो चुका होगा, प्रोडक्ट चेंज हो चुका होगा, एंड जितने भी सर्विसेज होंगे